Hello students, today's lecture will be based on classification of cyclic compounds including homocyclic, heterocyclic, aromatic, alicyclic, anti-aromatic, annulenes. So it will be a very informative lecture about the entire cyclic compound, how will you classify them, how will you identify them, okay? So make sure you note down every bit of point written on board. Now, we know that cyclic compounds are closed chain ring compounds where the two termini of the long chain carbon atom are attached to each other. Now, if we classify the cyclic compounds, they have been classified in two types. First is homocyclic, also called as carbocyclic. Second is heterocyclic compounds. Now, what is this homocyclic or carbocyclic? Homocyclic or carbocyclic compounds are those compounds where the entire ring, entire cyclic compound is made up of only and only one single atom, that is carbon atom. So, यहाँ पर जितना भी structure बनेगा cyclic structure, उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? Carbon atom. In hetero means different, homo means same, hetero means different. मतलब here, along with large concentration of carbon atom, they can be oxygen, they can be nitrogen, they can be sulfur, they can be halogen, etc. तो different atoms will be attached along with carbon atom, but carbon atom का concentration ज़्यादा होगा. That is why वो organic compound है. ये हमको दिमाग में रखना ज़रूरी है. Okay? So this will be heterocyclic. कि along with carbon there will be another atom. A different atom, different is hetero, to form a cyclic chain structure. And here it will be only carbon atom which is forming a cyclic chain structure. Now, these homocyclic and heterocyclic compounds are further classified as alicyclic, homocyclic, aromatic, homocyclic. Similarly, heterocyclic also find further division, that is alicyclic and aromatic. Aromatic हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये दो एग्जाम्पल देख लेते हैं. Alicyclic homocyclic compound, alicyclic heterocyclic compound. Okay, so these are non aromatic compounds. ये compound को हम लोग non aromatics भी बोल सकते हैं. Now what are the examples of this? Let us try to understand. For example, सबसे simple example alicyclic का cyclopropane. देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ. Cyclopropane can be written as C attached to another carbon attached to another carbon. 3 carbon form a cyclic chain. These are the hydrogen which are not the part of chain. Hydrogen chain का part नहीं है. साइक्लिक चेन का पार्ट सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है, तो इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम, होमोसाइक्लिक. ओके, देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, देन वी कैन हैव अ साइक्लोपेंटेन, या तो फिर उसको अल्कीन में अनसैचुरेट किया तो साइक्लोपेंटीन. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना है OH लगा दिया तो दिस विल बी कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेनॉल, अल्कोहल हो गया. क्लियर है? सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. अब साइड चेन भी हो सकता है इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल CH2 CH3, द इथाइल ग्रुप अटैच टू साइक्लोहेक्सेन, तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइल साइक्लोहेक्सेन. ठीक है, अगर इसमें डबल बॉन्ड डाल दिया तो साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा. सो दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव ओनली एंड ओनली कार्बन एटम. देखो ये ऑक्सीजन कार्बन चेन के बाहर है, साइकिल की चेन में सिर्फ कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है. देखो यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है. अभी सपोज मैंने ऐसा ग्रुप बना दिया, मैंने एक साइक्लोपेंटेन ग्रुप लिया, दिस इज साइक्लोपेंटेन, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया NH2 ग्रुप से, तो साइक्लोपेंटेना अमाइन बन गया. बट दिस कंपाउंड में द नाइट्रोजन एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ साइक्लिक चेन, सो दैट इज व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज होमोएलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, नाउ हेट्रोएलिसाइक्लिक, इसके अंदर अलॉन्ग विद कार्बन कोई डिफरेंट एटम प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन एटम अटैच टू ऑक्सीजन, मतलब दिस कंपाउंड कैन बी रिटन एज, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, C अटैच टू O अटैच टू C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. सो सी इन अ चेन, इन दिस साइक्लिक चेन देयर आर 2 कार्बन अटैच टू 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक डिफरेंट एटम हो गया.
Okay, this compound, the name of this compound is oxirane, or also called as ethylene epoxide. So this is a epoxide where two carbon attached to an oxygen. अभी दूसरा एग्जाम्पल था इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक टू ऑक्सीजन अटैच टू टू कार्बन एटम एट टू साइड्स. देखो दिस इज 1 2 3 4. तो two carbon atom on the right, two carbon on left hand side, and two oxygens are attached. So this is called as 1,4-dioxane. 1,4 dioxane. Okay. For example, if I take a 4 carbon chain attached to NH, a nitrogen. So see, there is a 4 carbon atom in a cyclic chain and a different atom, nitrogen. This compound is called as pyrrolidine. Now in this case it is a 5-membered structure. बराबर देखो तो 5 मेंबर इस रिंग में, जिसमें 4 आपके कार्बन है और एक नाइट्रोजन है. इसमें 6 मेंबर है जिसमें 4 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. ये 3 मेंबर रिंग है जिसमें 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन है. So these are the examples where you have a different atom attached to it. One more example, tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran appears like this. 2 lone pair on oxygen. यहाँ पर भी 2 lone pairs होते हैं ऑक्सीजन पे. So here has 1 lone pair on nitrogen. Here you have a 2 lone pairs on oxygen. Okay, मैं डाल देता हूँ. Now this is called as THF. THF, also called as tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. Fifth example. 6 membered जिसमें एक नाइट्रोजन हो गया. ठीक है, the lone pair. This is called as pyridine. Now in this molecule, if you see, there are 1 2 3 4 5. There are 5 carbon atom attached to one nitrogen. तो cyclic chain total 6 member का है. In this 6 membered ring, 5 will be carbon and 1 will be nitrogen. This is 1 2 3 4 5 6. Okay, so sorry, 5. 1 2 3 4 5. In this 5 membered structure, 4 are carbon and 1 will be what? Oxygen. In this structure, 5-membered structure, 1 will be nitrogen and 4 will be carbon. So along with carbon there are different atoms attached to it. That is why it is called as alicyclic heterocyclic compounds. hetero क्यों हो गया? Because of the presence of different atom. And this is homocyclic, कि चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन स्ट्रक्चर ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा. ओके, सो दिस वाज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ alicyclic, homocyclic, alicyclic, heterocyclic. Now we will move on to aromatic compound. First note down all the points in it. Okay guys, let's move on to the next part. The next part is the classification of aromatic compounds. Okay, so I'll rub this out, or we'll start discussing the aromatic compounds in it. Okay. Now, this word aromatic comes from a Greek word aroma. Simple है समझने के लिए, which means pleasant smell. And earlier, when there was extraction of benzene took place, and derivative of benzene, they have pleasant smell in it. So, chemist made a definition that benzene and their derivative which have pleasant smell are termed as, which have aroma, they are termed as aromatic compounds. But later on, we found out many chemicals which does not resemble benzene. They are not made up of benzene, but yet they have pleasant smell, like esters. They are used in perfumes. They do not look like benzene, but they have a pleasant smell. So this definition of aromatic compound was discarded, but the name was kept as aromatic. So a new definition came into existence. For that, we need to understand Huckel rule of aromaticity. Okay, वो start करने से पहले एक basic हम लोग जो previous lectures में देखे थे, वो हम लोग थोड़ा सा ध्यान में दे देते. That if there is a C single bond C, तो all those single bonds are sigma bond. ठीक है, अगर C डबल बॉन्ड C होता है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. And if it is C triple bond C, then in that triple bond 1 will be sigma and 2 will be pi bond.
ये हम लोगों ने बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखा है इसके अंदर। ओके, दूसरी बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्जुगेशन? तो कॉन्जुगेशन का सिंपल मीनिंग ये है, इट हैज अ सिंपल मीनिंग दैट अगर आप केमिस्ट्री में इसका वर्ड सर्च करोगे तो इट गिव यू अ सिंपल मीनिंग कि देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द एम्प्टी p ऑर्बिटल्स, द p ऑर्बिटल्स। और ये आप लोगों को वो टाइम पे क्लिक नहीं होगा, तो इसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स कॉन्जुगेशन वर्ड एक्चुअल मीन लिंक टू द अदर बॉन्डिंग स्टेट, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड होना। तो हम लोग यहां पर क्या लिंकेज ढूंढ रहे हैं एरोमेटिक के लिए, वो ध्यान में रखना जरूरी है। लिंकेज होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स का। पाई बॉन्ड्स हमको कहां दिखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड में। तो कॉन्जुगेशन का सिंपल मीनिंग यह है कि देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड विथ अ मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड विथ अ मल्टीपल बॉन्ड, ओके, और सिंगल बॉन्ड एसोसिएटेड विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग वो कॉन्जुगेशन लिंकेज ढूंढते हैं, जिसका हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड द हकल्स रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी। तो सिंपल चीज आप एक याद रखो, द कॉन्जुगेशन मीन्स इट इज अ लिंकेज ऑफ वन single bond to a multiple bond, but that is alternately present. For example, single bond, double bond, single bond, double bond. तो single bond एक सिग्मा होता है, double bond में एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो एक पाई बॉन्ड सिस्टम है, एक सिग्मा बॉन्ड सिस्टम है। तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये एक लिंकेज हो गया, ये एक कॉन्जुगेशन हो गया। बट ये कॉन्जुगेशन ऑल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन, मतलब पहले एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मिलेगा, फिर एक पाई बॉन्ड मिलेगा डबल बॉन्ड, फिर एक सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। सो देयर इज अ लिंकेज। ये लिंकेज हमको ढूंढना है टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड, ये लिंकेज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। दे कैन बी अ पाई बॉन्ड अटैच टू अ सिग्मा बॉन्ड अटैच टू अ लोन पेयर, तो ये भी एक कॉन्जुगेशन है। या तो पाई बॉन्ड अटैच टू सिग्मा बॉन्ड अटैच टू पॉजिटिव चार्ज, जहां पर MTP ऑर्बिटल होता है, तो ये भी एक लिंकेज है। सो ये लिंकेज हमको ढूंढना है, बट ये लिंकेज ऑल्टरनेट होते हैं। आप पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड नहीं ढूंढ रहे हैं, आप सिग्मा के साथ सिग्मा नहीं ढूंढ रहे, आप सिग्मा के साथ पाई ढूंढ रहे हो और पाई से एसोसिएट होना चाहिए सिग्मा, सिग्मा से एसोसिएट पाई, ये एक लिंकेज ढूंढ रहे हो। या तो आप ढूंढ रहे हो सिग्मा पाई लोन पेयर, या तो आप ढूंढ रहे हो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये लिंकेज हम लोग ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉन्जुगेशन। प्लस ये लिंकेज में जितने भी लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइज मतलब वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, वो भी हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे। सो बेसिकली आप सिंपल मीनिंग दिमाग में रखो कि कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट अ लिंकेज। और हम लोग यहाँ पर लिंक किसका ढूंढ रहे हैं? वन सिंगल बॉन्ड विद अ मल्टीपल बॉन्ड और विद अ लोन पेयर और विद अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, द कॉन्जुगेशन मीन्स अ linkage. Also remember, in a double bond there is one sigma bond and one is what? Pi bond. So this is a multiple bond system. Okay, these are the multiple bond system. Now let's move on to Huckel rules of aromaticity. Okay, what is aromatic compound basically? क्या होते हैं? Okay, so let us talk about Huckel's rule of aromaticity. Okay, what are aromatic compound basically? So now Huckel rule says कि aromatic compound or those compound, first of all it should be cyclic. It should be cyclic in nature, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। सेकेंड, वो एक प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि उसके सारे एटम्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपको बेंजीन बना के दिया, तो बेंजीन इज 6 कार्बन एटम्स इन इट। सो आपको अज्यूम करना कि एक कार्बन इधर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे एक ही प्लेन में आ रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन वन सिंगल प्लेन। ऐसा नहीं कि एक कार्बन इधर है, सेकेंड इधर है, तो थर्ड इधर है, फोर्थ इधर है, फिफ्थ नीचे है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल कार्बन लाइन वन सिंगल प्लेन। जैसा हम लोग फैन के ब्लेड्स देखते हैं, वो एक ही प्लेन में आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ब्लेड ऊपर है और ब्लेड नीचे। नो, दे लाइन वन सिंगल प्लेन। तो इन बेंजीन all carbon atoms lie in one single plane and hydrogen attached to each other also lie in one single plane. So planar compound होना चाहिए, सारे एटम एक ही प्लेन में होना चाहिए, ओके, प्लस साइक्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव कॉन्जुगेशन। मैंने आपको बताया था कॉन्जुगेशन मतलब एक लिंकेज होना चाहिए। किसका? कौन से सिस्टम का? तो वो सिस्टम होना चाहिए सिग्मा पाई सिग्मा ऑल्टरनेट, या तो फिर वो लिंकेज होना चाहिए सिग्मा पाई विथ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, एलपी लिख देता हूं मैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो फिर वो लिंकेज होना चाहिए पाई सिग्मा एंड कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी, पी ऑर्बिटल खाली है, वहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, इट कैन बी अ पाई सिग्मा पाई, वन एंड द सेम थिंग, ओके। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये वी आर लुकिंग दिस लिंकेज, ऑल्टरनेट लिंकेज ऑफ पाई, ऑल्टरनेट लिंकेज ऑफ दिस लोन पेयर एंड सिग्मा। तो ये लिंकेज कॉन्जुगेशन में मिलना चाहिए। प्लस इसमें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है इन दिस कॉन्जुगेशन, यू हैव टू रिमेंबर कि दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, मतलब वो अपनी जगह छोड़ के चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द p ऑर्बिटल, दे डीलोकलाइज्ड, ओके। एंड सच डीलोकलाइजेशन of those pi electrons or the lone pair are termed as resonance, are termed as resonance। ये हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को, क्लियर है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट शुड हैव 4n+2 pi electrons। ये होना चाहिए 4n+2। n कैन बी एनी इंटीजर, n कैन बी 0, तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 2, मतलब पाई बॉन्ड्स कितने हुए 1, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड। अच्छा, n अगर 1 हुआ मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 पाई बॉन्ड्स। अगर n 2 हुआ तो इट शुड बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 5 पाई बॉन्ड। n 3 हुआ तो इट विल बी 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी 7 पाई बॉन्ड्स, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। सो अगर कोई भी सिस्टम प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, लिंकेज, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और प्लस ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूं, द बेस्ट एग्जाम्पल इज बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। It's a planar molecule where all the atom lie in one single plane। तो इसके लिए देखो मैं ऐसा बना रहा हूं इसको, like this। All the atom lie in one single plane। सारे हाइड्रोजन भी इसके प्लेन में आते। और आपको ये पता होगा कि it has a system of alternate single and double bond। तो सिंगल बॉन्ड आपका सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, फिर एक सिग्मा आ गया, फिर एक पाई आ गया, फिर एक सिग्मा आ गया, फिर एक पाई आ गया। सो यू हैव अ सिस्टम ऑफ पाई सिग्मा पाई, ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा। तो साइक्लिक है, यस सर, इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, ठीक है सर, प्लेनर भी है। क्या इसमें कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन का मतलब थ्रू आउट द मॉलिक्यूल, सिर्फ एक साइड नहीं चलेगा। मतलब कोई बोलेगा सर सिग्मा पाई सिग्मा है, आगे सिग्मा सिग्मा है, नहीं 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 नहीं, इट शुड बी सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई थ्रू आउट द सिस्टम होना चाहिए। मतलब ये जो कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन साइक्लिक होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, ओके। प्लस दिस पाई बॉन्ड अगर ये शिफ्ट होके इधर आता है, इसकी जगह पे पूरा फ्लिप हो जाता है,
तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ओके, तो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जिसके वजह से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। बट दैट स्ट्रक्चर में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व है, दैट इज कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, उन सब का पोजीशन सेम है, बस पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ शिफ्ट हो रहा है और एक इधर आ गया। तो पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इज चेंजिंग बट द पोजीशन ऑफ एटम आर रिमेनिंग इंटैक्ट। अब देखो ये अपना पोजीशन चेंज करेगा तो आपको वापस से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, बराबर देखो, देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। सो दिस टू स्ट्रक्चर where the position of pi bond changes but the position of atoms remain intact, these two structures are called as resonating or canonical structure, and such phenomena is called as resonance, where you can, resonance का actual meaning क्या होता है? resonance का meaning ये होता है कि जब आप किसी भी एक structure को मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। ओके, व्हेन वन स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट इन मल्टीपल फॉर्म, बट कंडीशन क्या है? द पोजीशन ऑफ एटम शुड रिमेन इंटैक्ट, only the position of pi bond or the position of lone pair changes. That is called as resonance. So you can represent benzene in this two form. तो this two forms में हम लोगों ने position of atoms को intact रखा है, but position of pi bonds को हम लोगों ने change किया है. So that is called as resonance, and these two structure are called as resonating or canonical structure. And when you mix this two structure, you will get the actual structure of benzene, that is 6 carbon atom along with hydrogen plus a dotted circle, or you can also represent it by a solid circle. This structure of benzene is called as hybrid structure. Which are mixing these two structure you get a hybrid structure. ये dotted circle या solid circle क्या represent कर रहे हैं? ये represent कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एक ही जगह पे फिक्स नहीं है, वो अपने पोजीशंस चेंज कर रहा है, मतलब वो डीलोकलाइज हो रहा है। That is resonance. Okay, and this is the most stable structure of benzene. मतलब बेंजीन को ऐसा रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ओके, सो कमिंग बैक टू अ टॉपिक, क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है? हाँ सर। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है? हाँ, इसके सारे एटम्स एक ही प्लेन में आते हैं। क्या यहाँ पर साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? हाँ सर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है पूरा थ्रू आउट। प्लस इसके पास कितने पाई बॉन्ड्स? अच्छा, क्या पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहे हैं? हाँ सर, डीलोकलाइज हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। प्लस उसके पास कितने पाई बॉन्ड्स हैं? तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ओके, 3 पाई बॉन्ड्स मतलब एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सर, सेटिस्फाई करता है, 3 पाई बॉन्ड सेटिस्फाई करता है। मतलब दिस कंपाउंड बेंजीन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें सारे फीचर्स एरोमेटिसिटी के आ गए इसके अंदर। ओके गाइस, अब इसका मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूं आपको। मैं सेकेंड एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूं, बराबर देखना। मैंने एक रिंग कंपाउंड लिया, 6 कार्बन का ही लेता हूं मैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे एरोमेटिक है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ एक पाई बॉन्ड रखा है तो ये सिग्मा हो गया, ये भी एक पाई बॉन्ड रखा है इधर पे, क्लियर है? फिर ये सिग्मा होगा। अब यहाँ पर मैं एक लोन पेयर लेके आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक लेके आ रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब MdP ऑर्बिटल, और लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बराबर देखो, पहले क्या ये साइक्लिक है? हाँ सर, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। मान लो ये एक प्लेनर कंपाउंड है, मैं बता रहा हूँ आपको ये प्लेनर कंपाउंड है। दूसरी बात, क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन थ्रू आउट है? चलो देखते हैं। ये है सिग्मा पाई, सिग्मा लोन पेयर, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई। बराबर देखो, पाई सिग्मा पाई, सर मिल गया सर, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई मिल गया वो कॉम्बिनेशन। दूसरा पाई सिग्मा लोन पेयर, सर पाई सिग्मा लोन पेयर, ओहो। उसके बाद में लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई। देखो यहां पर भी देखो, सिग्मा के बाद डायरेक्ट सिग्मा नहीं आ रहा है, सिग्मा, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज देना सिग्मा देना पाई, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी आपको मिल रहा है इधर पे।
सो अगर बराबर देखोगे तो इसके अंदर सी प्रॉपरली, इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट हैज अ साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब लिंकेज बराबर। पाई सिग्मा पाई भी मिलता है आपको, पाई सिग्मा लोन पेयर भी मिल रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, मतलब थ्रू आउट लिंकेज मिल रहा है, कहीं पर भी लिंकेज मिसिंग नहीं है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये कंपाउंड को बराबर देखोगे तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। प्लस ये जो लोन पेयर है, अगर ये यहां पर शिफ्ट हो गया, बराबर देखो शिफ्ट हो रहा है, डीलोकलाइज शिफ्ट हो रहा है, तो आपको एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा मिल जाएगा। देखो ऐसा मिल जाएगा स्ट्रक्चर, मैं बना रहा हूं, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी प्रॉपरली, मतलब ये पूरा ही बॉन्ड मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहां तो ऑलरेडी पाई थे, पाई था, अब ये बॉन्ड अगर अंदर शिफ्ट किया तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड यहां बना देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई कॉम्बिनेशन। सर ये तो बेंजीन बन गया, मैंने बोला हाँ ये तो बेंजीन है। क्लियर है? अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लोन पेयर भी किस में जाके कन्वर्ट हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। तो लोन पेयर को भी मैं काउंट कर रहा हूं एरोमेटिसिटी में, ये ध्यान रखने का। हर लोन पेयर को आप काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट काउंट एवरी लोन पेयर, यू हैव टू काउंट दैट लोन पेयर विच पार्टिसिपेट्स इन द डीलोकलाइजेशन, इन द कॉन्जुगेशन प्रोसेस, इन द रेजोनेंस प्रोसेस, सिर्फ उसी को ही काउंट करना है, बाकी हर लोन पेयर को आप काउंट नहीं कर सकते। बट ये लोन पेयर यहां पर देखो कॉन्जुगेशन में काम कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग अ मल्टीपल बॉन्ड, इट इज फॉर्मिंग नॉट अ सिग्मा बॉन्ड बट इट इज फॉर्मिंग अ पाई बॉन्ड। सो अब टोटल 2 + 2 + 2, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गया, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मैच करता है एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया। सो दिस कंपाउंड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एरोमेटिसिटी। अब सपोज मैंने इसमें ये कंपाउंड दे दिया, अब बोलेंगे सर ये एक साइक्लोप्रोपीन है, मैंने बोला हाँ मिला, ये पाई सिस्टम, ये सिग्मा सिस्टम, सिग्मा, अरे पाई सिग्मा के बाद में पाई होना चाहिए, पाई सिग्मा के बाद में सिग्मा नहीं होना चाहिए, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर हो सकता है, चलो ठीक है मान लेते हैं, साइक्लिक हो सकता है मान लेते हैं, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, ये भी मान लेते हैं, बट कौन सा क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कॉन्जुगेशन का। सो इट इज नॉट सेटिस्फाई, पाई सिग्मा, सिग्मा आ रहा है, पाई सिग्मा के बाद में पाई आना चाहिए, या तो लोन पेयर होना चाहिए, क्लियर है, या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। मतलब अगर इसी मॉलिक्यूल में मैंने ये सिस्टम लेके आया, पाई विद अ पॉजिटिव चार्ज, तो आप बोलेंगे सर ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव। सर कॉन्जुगेशन हो रहा है, प्लेनर भी हो रहा है, साइक्लिक भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है सर इसमें, तो ये कंपाउंड बन जाएगा एरोमेटिक। तो बराबर देखने का, सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन मैच हो गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन मिलता है पाई सिग्मा प्लस का। ओके गाइस, सो आई होप यू अंडरस्टूड एंटायर थिंग अबाउट एरोमेटिसिटी। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो लेट अस क्लासीफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स। पहले ये नोट डाउन कर लो प्लीज। Okay guys, after the completion of aromatic compounds, we will now study the classification of aromatic compounds. So I'll rub this out first. Now let us classify aromatic compounds. Aromatic compounds are classified as, we know that it is either it can be a homocyclic carbocyclic compounds, or it can be a heterocyclic compounds. Now what are homocyclic? Which has only carbon atom. Heterocyclic along with carbon एक different atom उसमें present होगा. Okay. Now homocyclic aromatic compounds can be further classified as benzenoid
मतलब कंपाउंड विच रिजेंबल बेंजीन स्ट्रक्चर एंड नॉन बेंजीनॉइड। सिमिलरली हेट्रो को भी आप क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासीफाइड एज हेट्रो कंपाउंड रिजेंबलिंग बेंजीन, तो वो हो जाएगा benzenoid, but it will have a heteroatom in it, and plus it can be classified as a non benzenoid. Okay, now benzenoid homocyclic मतलब only made up of carbon atom, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, नंबर 1 एग्जाम्पल इज बेंजीन, 3 पाई बॉन्ड्स, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, और इट कैन बी अनदर मेंबर. The next member is naphthalene. See properly. It is a cyclic compound, planar compound. It has 5 pi bonds. मतलब कितना हो गया? 10 pi electrons. आपको पता होगा aromatic के लिए कितने pi electrons होने चाहिए? Either it should be 2, 6, 10, 14. Then उसके बाद में so on. अगर आपने 4 लिया तो 18 and so on. So it's 10 pi electron naphthalene, aromatic. Third, we can say another member of benzene, that is इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, see properly. This is called as anthracene. Now it has 7 pi bonds if you count properly, 1 2 3 4 5 6 7 7 pi bonds मतलब 14 pi electrons. It resemble the criteria of Huckel rule. Planar है, cyclic है, 14, but benzene से भी resemble करता है. See properly, the rings are similar to benzene, therefore benzenoid आ रहा है. अब इसके अंदर ये example ले सकते हैं. For example, you take example of phenol, एक functional group डाल दिया, तो phenol में oxygen is outside the ring. See properly, oxygen is present outside the ring. It has 3 pi bonds in the ring, मतलब टोटल हो गया 6 pi electrons. So ये भी बेंजीन से रिजेंबल करता है, और ये हेट्रोएटम रिंग के बाहर है, ये रिंग का पार्ट नहीं है, इसके लिए कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गया. तो दिस इज कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स. ओके, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनॉल एंड सो मेनी अदर डेरिवेटिव. अभी बाइफिनाइल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं. 2 फिनाइल ग्रुप्स टुगेदर, सी प्रॉपर्ली, इट इज 2 फिनाइल ग्रुप्स टुगेदर. तो आप बाइफिनाइल्स के कंडीशन में, दिस एग्जाम्पल इज बाइफिनाइल, बिकॉज बेंजीन का दूसरा नाम फीन होता है, फीन होता है, तो इसको फिनाइल, 2 फिनाइल ग्रुप साथ में है, तो 2 rings are together. तो in such case you see only one ring. This ring has 6 pi electron, this ring has 6 pi electron. Now this is not like naphthalene. Naphthalene में ये fused है, see properly, spiro compound, ये fused है, इसमें fuse नहीं है, इसमें 2 कार्बन एक दूसरे से 2 रिंग अटैच हो रही है, तो यू सी ओनली 1 रिंग, बट इफ दे आर फ्यूज टुगेदर यू हैव टू सी ऑल द पाई बॉन्ड्स. तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही रिंग देख रहे हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्राइटेरिया मैच करता है. ओके, हकल रूल का. प्लस प्लेनर है, साइक्लिक है, बेंजीन से रिजेंबल करता है, तो ये बेंजोनॉइड की कैटेगरी में आ गया. होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ओके, विच रिजेंबल बेंजीन. नाउ वी कैन हैव अ नॉन बेंजीनॉइड कार्बोसाइक्लिक. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ट्रोपोन. ट्रोपोन इज मेड अप ऑफ 7 कार्बन. बराबर देखना एग्जाम्पल को, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ट्रोपोन का. डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पे ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोन. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये साइक्लिक है? यस. प्लेनर है? यस. द रिंग इज ओनली मेड अप ऑफ विच कार्बन एटम? सॉरी, रिंग इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. प्लस डज इट हैव अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम? आपको पता होगा एरोमेटिक में कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है एरोमेटिक के अंदर पाई सिग्मा पाई. आप ये ढूंढते हो, या तो आप ढूंढते हो पाई सिग्मा लोन पेयर्स, ये ढूंढते हो, या तो आप ढूंढते हो पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज. तो अभी हमको यहाँ पर क्या दिखता है? पाई सिस्टम दिखता है, फिर सिग्मा दिखता है, फिर पाई सिस्टम दिखता है, फिर सिग्मा दिखता है. यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर सिग्मा. बोलेंगे सर 2 सिग्मा साथ में नहीं आने चाहिए, आपने बताया था, बट इसमें 2 सिग्मा साथ में नहीं आते. रीज़न क्या है?
In this, oxygen atom is more electronegative. Electronegativity is a tendency to pull the electron pair. कौन से electron pair जो covalent bond में involve है. So what will happen here? This oxygen, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बराबर देखोगे तो C डबल बॉन्ड O है. ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर. इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में और एक पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड आपको मैंने बताया था वो वीक होता है. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ पुल कर लेगा. पुल कर लिया पूरा. जब इसको पुल कर लेगा तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, दैट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. देखो डीलोकलाइज हो रहा है यहाँ पर, सी प्रॉपर्ली. इसको मैं ऐसा बना सकता हूं. There is a pi bond, pi bond, pi bond, सिंगल बॉन्ड O पे अब 3 लोन पेयर्स आ गए. इसके लिए नेगेटिव चार्ज. इस कार्बन से एक बॉन्ड कम हो गया. देखो 3 कार्बन, 3 बॉन्ड ही है, यहाँ पर 4 थे, तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव. अब सिस्टम देखो क्या हो गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा के बाद पॉजिटिव, देन सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव. मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है, प्लस 3 पाई बॉन्ड्स मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. तो सर ये एरोमेटिक है, कार्बोसाइक्लिक है क्योंकि सारा रिंग कार्बन से बना है, बट 7 मेंबर है तो मतलब ये बेंजीन से रिजेंबल नहीं कर रहा है. दैट इज वाई इट इज नॉन बेंजेनॉइड. क्लियर है. अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज होने के बाद आप ये मत समझना कि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा. कैसे, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है लाइक दिस. यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करना है पॉजिटिव चार्ज को, तो पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये कार्बन तो इंटैक्ट ही है. देखो सी प्रॉपर्ली, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पर आएगा O-, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा. तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा भी मिल सकता है, सी प्रॉपर्ली. मतलब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं. पाई बॉन्ड को देखो, पाई बॉन्ड इधर आ गया, अब यहाँ से शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. अभी भी आपको वही सिस्टम मिलेगा, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई, सी वही सिस्टम मिल रहा है. फिर देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा लाइक दिस, O- रिंग. ठीक है. तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया. अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है लाइक दिस. सो रेजोनेंस कैन टेक प्लेस थ्रू आउट. मतलब यहाँ पर साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड का, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. तो सर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड के सारे फीचर्स है, बट इसमें 7 मेंबर्ड का रिंग है सर, तो ये नॉन बेंजीनॉइड है, और टोटल कार्बन है रिंग में तो होमोसाइक्लिक है. ओके, सो रिमेंबर दिस पार्ट अबाउट द रेजोनेंस. आई विल रब दिस आउट. इतना भी आपको बताया तो समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सिस्टम साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आया. अब दूसरा एग्जाम्पल देखो. दूसरा एग्जाम्पल में आई अगेन मेक अ 7 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 5 6 7. इसको ज्वाइन कर देता हूँ. ठीक है, ये 7 मेंबर्ड रिंग बना है. अब इस 7 मेंबर्ड रिंग से एक 3 मेंबर्ड रिंग में देखो स्पायरो के जैसा 1 2 3 अटैच टू इट. ओके, नो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बॉन्ड प्लेस कर रहा हूँ. देखो एक बॉन्ड इधर आ गया, पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई, सिग्मा बॉन्ड हो गया इधर पे. क्लियर है. तो अब ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर एक पाई डाल दिया मैंने, देन अगेन अ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा, फिर एक सिग्मा बॉन्ड आया, फिर एक पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई, प्रॉपर कॉन्जुगेशन है. तो सर साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन. टोटल देखो 1 2 3 4 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 5 पाई बॉन्ड्स, मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्राइटेरिया मैच कर रहा है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है. सो ये हो गया एरोमेटिक, बट ये बेंजीन से रिजेंबल करता है नहीं. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एजुलीन. रिमेंबर, तो एजुलीन, ट्रोपोलोन, मतलब एक और एक एग्जाम्पल इसमें मैं लिख सकता हूं. थर्ड एग्जाम्पल इज ट्रोपोलोन. देखो ये 7 मेंबर्ड है, मतलब ये बेंजीन से रिजेंबल कभी नहीं करेगा. डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक OH हो गया. दिस इज ट्रोपोलोन. ना इसमें भी देख लो बराबर से, इफ़ यू सी प्रॉपरली, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
जिसके वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज, सेम ऐसी। तो आपको बराबर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन मिलेगा, प्लस देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ये सारे एग्जाम्पल्स नॉन बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है बेंजीनॉइड होमोसाइक्लिक में आ गए। ठीक है, सो अब इसको नोट डाउन करो। मैं फिर बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक पे जाता हूं। ओके गाइस, सो आई रब दिस आउट। अब इसको नोट डाउन कर लेना बाद, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन, एंड आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आई रब दिस आउट ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए लिखने के लिए। बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड होते हैं। ओके, सो अब इसके अंदर हम लोग बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड के एग्जांपल्स देखेंगे। नो, बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक मतलब बेंजीन 6 मेंबर का है, तो 6 मेंबर होना चाहिए, बेंजीन से रिजेंबल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बराबर देखना। एन पे एक लोन पेयर है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिस्टम को बराबर से देखो। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज pyridine. Now it is a cyclic compound, it is a planar compound, it has cyclic conjugation. कैसा मिल रहा है cyclic conjugation, देख लो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा, तो इसमें cyclic conjugation है, प्लस इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इफ यू सी देयर आर 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता पिरिडीन में, इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन। ये रिंग में नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी रिंग में कॉन्जुगेशन मिल रहा है। मतलब इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से भी लिखूंगा तो भी चलेगा, एन, क्लियर है। वेयर दिस पाई बॉन्ड आर रेजोनेटिंग, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो डीलोकलाइजेशन एक बार हो रहा है। सो डीलोकलाइजेशन में हम लोग बोल सकते हैं दिस पाई बॉन्ड चेंज देयर पोजीशन, तो डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है, टोटल 6 मेंबर्ड है, मतलब बेंजीन से रिजेंबल करता है। बट एक हेट्रो एटम आ गया रिंग में, देखो नाइट्रोजन इन अ साइकिल, therefore it is बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, रिजेंबल बेंजीन। अब इसी का मैं और एक एग्जांपल दे दूं, क्विनोलिन, एक रिंग 6 मेंबर्ड, देखो अगेन एक रिंग 6 मेंबर्ड, बट एक नाइट्रोजन आ जाएगा इधर पे क्विनोलिन के अंदर। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाया हमने, यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ एक पाई बॉन्ड, यहाँ एक पाई बॉन्ड, तो टोटल देखोगे तो 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टी लोकलाइजेशन हो सकता है रिंग में, इसके लिए हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब दिस स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नाइट्रोजन। ये क्या रिजेंबल कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। तो डी लोकलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज एरोमेटिक बेंजीनॉइड बिकॉज दे आर रिजेंबल बेंजीन रिंग। हेट्रो क्यू, बिकॉज नाइट्रोजन एटम आ गया इसके अंदर, एक डिफरेंट एटम आ गया, तो हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। दिस कंपाउंड हैज अ नेम क्विनोलिन, रिमेंबर दिस। तो क्विनोलिन इज एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो बेंजीनॉइड के मैंने एग्जाम्पल दिया हेट्रो में। अब नॉन बेंजीनॉइड के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन बेंजीनॉइड के एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन विद 2 लोन पेयर, 2 पाई बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरान। बराबर ये मॉलिक्यूल को देखना, इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स है दिस इज कॉल्ड एज पायरोल। दिस इज कॉल्ड एज, सल्फर आया, दिस इज कॉल्ड एज थायोफीन। मैं एक एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, फ्यूरान का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फ्यूरान को साइड पे ले लेता हूं, दिस इज फ्यूरान। अब आपको पूछ रहा हूं क्या ये साइक्लिक है, यस सर दिस इज साइक्लिक। प्लेनर आपको मानना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं ये प्लेनर है, ऑल एटम लाइन वन सिंगल प्लेन। ओके, क्या इसके अंदर साइक्लिक
कॉन्जुगेशन है क्या, लेट्स चेक आउट इफ इट हैज साइक्लिक कॉन्जुगेशन और नॉट. सो वी हैव अ सिस्टम ऑफ पाई, दिस इज पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा. तो बराबर पाई सिग्मा लोन पेयर, मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर भी मिलता है, पाई सिग्मा पाई भी मिलता है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल. तो सर इट हैज़ अ साइक्लिक कॉन्जुगेशन, मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो ये सिग्मा हो गया, फिर ये एक पाई बॉन्ड आएगा, फिर एक आएगा सिग्मा बॉन्ड, फिर एक आएगा पाई बॉन्ड, सी प्रॉपर्ली पाई बॉन्ड, फिर एक आएगा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और प्लस दिस लोन पेयर. तो दिस इज लोन पेयर. तो सर देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, यू हैव अ प्रॉपर कॉन्जुगेशन. ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आ रहे, ऑल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड आ रहे और लोन पेयर भी देखो सिग्मा के बाद ही आ रहा है. तो इट हैज़ अ प्रॉपर साइक्लिक कॉन्जुगेशन. अब चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है. तो सी प्रॉपर्ली इट कैन बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर कोई भी मॉलिक्यूल को देखेगा तो वो बोलेगा सर इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है. तो 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन. तो सर ये एरोमेटिक नहीं है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. रीजन क्यों है, रीजन क्या है कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, सी प्रॉपर्ली मैं इसको वापस से ऐसे बना रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट बना रहा हूं बॉन्ड को. देयर आर 2 लोन पेयर्स इन ऑक्सीजन. वन ऑफ द लोन पेयर विल इन्वॉल्व इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन. तो ये जब लोन पेयर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये लोन पेयर, ये वाला पाई बॉन्ड जो है, सी दिस पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आएगा तब ये पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, दिस पाई बॉन्ड विल गो ऑन दिस पोजीशन. तो इसका जो एक कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वेयर द पोजीशन ऑफ एटम इज इंटैक्ट, ओनली द पोजीशन ऑफ लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड इज चेंज. तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्यों, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया बॉन्ड के लिए. यहाँ पर देखो लोन पेयर आ जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज, ये एक बॉन्ड इधर ही है. फिर उसके बाद में ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है तो ये इधर पे आएगा, तो रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा. मतलब देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स. अब बराबर देखोगे तो आउट ऑफ दिस 2 लोन पेयर, this lone pair, one of the lone pair will convert itself into a pi bond. See properly, एक लोन पेयर तो इधर ही है. तो मतलब फ्यूरान में एक ही लोन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता. तो सिर्फ ये लोन पेयर को आप काउंट करोगे तो ये लोन पेयर अल्टीमेटली कौन से बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड. सो अब अगर काउंट करोगे तो ये एक पाई बॉन्ड है, ये एक लोन पेयर जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये एक पाई बॉन्ड है. तो मतलब 2 + 2 + 2 इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली पायरोल में देखो, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, शिफ्ट होगा, मतलब ये कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, तो टोटल हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन. थायोफीन में ये लोन पेयर जाएगा कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में, कन्वर्ट किस में होगा, पाई बॉन्ड में, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन. मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया ये लोग मैच करते हैं बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स. सो ये तीनों मॉलिक्यूल्स, फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफीन, ये तीनों मॉलिक्यूल्स को आप जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर ये एरोमेटिक नहीं है, इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है. बट वो गलत होगा. इसमें 2 लोन पेयर में से, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से वन ऑफ द लोन पेयर टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. नाइट्रोजन का एक ही लोन पेयर है विच टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. सल्फर के 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन टू फॉर्म व्हाट, अ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम. दैट इज व्हाई फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल आर एरोमेटिक इन नेचर. डू दे रिजेंबल बेंजीन? नो. तो दे आर नॉन बेंजीनॉइड. अच्छा, क्या इनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मैच कर रहे हैं? हाँ, बिकॉज वन ऑफ द लोन पेयर इज काउंटेड एज अ पाई बॉन्ड, तो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो मैच करते हैं. पेरिडीन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड से जो रेजोनेंट हो रहे हैं. बट यहाँ पर पायरोल में ये लोन पेयर रेजोनेंट में जाएगा टू मेक इट 3 पाई बॉन्ड सिस्टम. सो दिस इज नॉन बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक, दिस इज बेंजीनॉइड हेट्रोसाइक्लिक. नोट डाउन. Then we will move ahead with the discussion of next part, that is anti-aromatic compounds.